5 ارکان ہیں۔ توحید یعنی کلمہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، ان سے محبت کرنا، ان کی آل سے محبت کرنا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 عبادت ہیں۔ پہلے تو توحید ہے، اس کے بعد عبادت۔ اکثر بتایا جاتا ہے نماز کے لیے کہ نماز پڑھنے میں نیکیاں ملتی ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے پر 70 گنا زیادہ نیکی ملتی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آپ لوگ سب لوگ سنیں ہماری بات۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ حرمین شریفین میں نماز پڑھنے پر اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عبادت ہے، یہ ہمیں بتایا گیا، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی خامی اور کمی نہیں ہے۔ لیکن جو قابل ذکر بات ہے وہ بات کیا ہے کہ ایک شخص جس نے عمریں تمام خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور اس کا پڑوسی اگر ایک رات بھوکا سو گیا، حضرت اس کا پڑوسی اگر ایک رات بھوکا سو گیا، ساری عبادتیں رائگاں ہو گئی۔ پتہ یہ چلا ان ساری عبادتوں کے اوپر حقوق العباد نافذ۔ اگر آپ سے حقوق العباد طلب ہو گیا تو کوئی عبادت آپ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ صوفیان کرام نے یہ تصوف کا راستہ کہاں سے چلا، تصوف کہاں سے شروع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہنے لگے واٹ از دا صوفیزم۔ ایک دیوبند کے بڑے مشہور ملا جی ہیں، وہی کہتے ہیں کہ دیر از اے نو سیکٹ آف صوفیزم ان اسلام۔ اور اس کے بعد جب وہ پھنس گئے کسی معاملے میں تو ان کا بھتیجا کہنے لگا، دلی کے وگیان بھون میں جارڈن کے شاہ عبداللہ آئے ہوئے تھے، ان کی کتاب کا رسم اجرا ہونا تھا۔ رسم اجرا میں انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے اپنی تقریر کی اور کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ اسلام میں ایک ایسا جز ہے جسے تصوف کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ تصوف ہی وہ راستہ ہے جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی جو بات میں نے بتائی کہ عمر تمام کی عبادت آپ کی رائگاں ہے اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ مجھے وہ ایک کتاب بتا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی کس ذات کا ہوگا تو پڑوسی مانا جائے گا، کس مذہب کا ہوگا تو پڑوسی مانا جائے گا، کس فرقے کا ہوگا تو پڑوسی مانا جائے گا۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں 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 فرقے کا ہونا چاہیے، فلاں 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 ذات کا ہونا چاہیے، فلاں 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 مذہب کا ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے بارے میں کسی مذہب کی، ملت کی، ذات کی، فرقے کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ پڑوسی پڑوسی ہے، ہمسایہ ہمسایہ ہے۔ مولا متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنے فرمان سنے کہ ہم لوگوں کو شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن پڑوسی کو وراثت میں حصہ دینے کا بھی معاملہ آ جائے۔ ہمسائے کا اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے، پڑوسی کا اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ صوفیاء کرام نے اس پر عمل کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ لوگوں کو اپنے نزدیک لانے کے لیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں تک بھلائی کی بات پہنچانے کے لیے صوفیاء کرام نے جو عمل کیے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
आपके पास राजपूत वहाँ के जाते थे और दूर से चले जाते थे, ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार जो भी वहाँ की परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए वहाँ से चले जाते। एक दिन आपने पूछा कि हमारे नज़दीक क्यों नहीं आते हो तुम लोग, यहाँ क्यों नहीं आकर के बैठते हो? तो आपने कहा कि बाबा जी आने का तो बहुत मन होता है, लेकिन आप क्या जो खाना वाना बनता है ना, हम लोग सात्विक लोग हैं, वो भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे खाने की जो लंगर में खाना होता है उस खाने की वजह से तो हमारे नज़दीक नहीं आ पाते हो। और उन खादिमों को बुलाया, फलाने यहाँ आओ। बोले जी हुजूर क्या बात है? बोले आज के बाद हमारे लंगर खाने में मीठे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। मिठाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं शामिल होता, तेल मसाला तो बहुत बड़ी बात छोड़िए। आज 800 साल हो गए, वो परंपरा आज भी है। हमारे बुजुर्गों ने लोगों को जोड़ने का काम किया, कभी ये नहीं कहा कि ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। और आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में कुछ ताकतें जो गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर और कुछ यहाँ की सियासी ताकतों के इशारे पर इस मुल्क को तोड़ देना चाहती है। और सबसे मुलायम चारा अगर कोई है तो वो जज्बाती कौम मुसलमानों की है, जिसे किसी भी चीज़ में बरगला करके किसी भी काम के लिए उकसाया जा सकता है। और उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा होता है तो हमारे नौजवानों का होता है। कोई प्रोटेस्ट हो, कोई धरना हो, हमारे नौजवानों को आगे कर दिया जाता है। हमारा नौजवान बहुत जज्बाती है, हमारा नौजवान इनके बहकावे में, इनके भड़काने में आ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग उन चीज़ों की तहकीक करें, उनको समझें, उसके बाद कानूनी तरीके से अपने मामलात को हल करें। किसी भी तरीके से कहीं भी तशद्दुद करने की या कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नौजवानों से यही पैगाम है कि वो सोच समझ करके काम करें, किसी के बहकाए में ना आए। अभी 2 साल पहले एक तहरीक चलाई गई थी, तमाम नौजवान आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, तमाम नौजवान गोलियों का शिकार हो गए। देखिए, जान किसी की भी हो वो कीमती होती है, दर्द किसी का भी हो, बहरहाल वो दर्द होता है। तो हम सूफियों की तो यही तालीम है और सूफिया किराम का हमेशा तरीका रहा है कि अपने वतन से उन्होंने मोहब्बत की है। चाहे अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों या हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हों, हमारे इन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने वतन की मोहब्बत में जिहाद के भी फतवे दिए हैं, जबकि सूफ़ी कभी फतवे नहीं देते, लेकिन हमारे इन बुज़ुर्गों ने जिहाद के फतवे दिए, अपने वतन की मोहब्बत की। आज कुछ ताकतें हमें बरगला देना चाहती हैं, निज़ाम बदल जाता है। आज किसी की हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत है, परसों किसी की हुकूमत होगी। निज़ाम बदल जाएगा, हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन ये मुल्क नहीं बदलेगा। हमें ये सोच करके काम करना चाहिए, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को संवारने में हमारे बुजुर्गों ने अपना हिस्सा लिया है, तो आज हमको भी इस मुल्क को बनाने में, संवारने में अपना हिस्सा लेना चाहिए। अगर कोई बात हो जाती है, एक अच्छा इंसान वही है जो बातों को दरगुजर कर देता है। अगर कोई बात हो जाती है, हम उसको दरगुजर करें और सब्र के साथ दूसरे कानून। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो खामोश बैठ जाइए, जुल्म का सहना भी बदतरीन गुनाह है। इमाम अली मकाम ने फरमाया है कि तुम जुल्म के खिलाफ जितनी देर में आवाज़ उठाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका, वो तरीके पे गौर करना चाहिए। आवाज़ उठाने का तरीका तशद्दुद नहीं होना चाहिए, आवाज़ उठाने का तरीका पत्थर नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाने का तरीका जो हमारे मुल्क के कानून ने हमको दिया है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ये जो शोभा यात्राएं रामनवमी की निकली, तमाम उल्टे सीधे नारे लगाए गए थे, उसके बाद लोगों ने पत्थर भी बरसाए थे। लोगों ने पूछा पत्थर क्यों बरसाए, उन्होंने नारे लगाए। इसके साथ और भी ऐसे काम हुए थे कि एक जगह शोभा यात्रा निकल रही थी तो मुसलमान उस पर फूल बरसा रहे थे।
बहुत सी जगह ऐसा मामला आया कि शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो हिंदू जो है वो ह्यूमन चेन बना करके मस्जिदों के आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी को भी मस्जिद में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर कोई झंडा लगाने जाएगा तो हम उसको इजाज़त नहीं देंगे, उसको घुसने नहीं देंगे। बहुत सी मंदिरें ऐसी हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमानों को बुला करके रोज़ा इफ्तार कराया गया। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अल्लाह ही है जो सारे आलमीन का रब है। मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या अल्लाह हिंदुओं का रब नहीं है? क्या अल्लाह सिखों का रब नहीं है? क्या अल्लाह ईसाइयों का रब नहीं है? अरे अल्लाह तो उसका भी रब है जो उसको नहीं मानता है, क्योंकि तख्लीक तो उसी ने किया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको इस आलमीन के लोगों के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो हमारे आका तो सरापा रहमत है सबके लिए। हम कैसे उनके गुलाम हैं कि दो लोगों के लिए रहमत बन जाए? हमारे ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है कि हमको एक पैगाम भी देना है कि हम उनके सच्चे और पक्के उम्मती हैं, और लोगों को तौहीद और रिसालत का भी पैगाम देना है। हमारे सामने दोहरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हमने तुमको चुन लिया, हमने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे दीन को पसंद किया, तुम्हें पसंद किया, तुम्हें चुना है। तो जिसको चुना जाता है उसके ऊपर जिम्मेदारी दोहरी होती है। तो आप चुने हुए हो, आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में शर्मिंदा होना पड़े। एक चीज़ और मैं आप सबको बहुत बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक नया फितना ईजाद हुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। हमारे सूफी जावेद कमर लियाकती साहब का हुक्म हुआ, हमारे भाई सैयद अफजाल अली चिश्ती साबरी साहब का हुक्म हुआ, कौसर मजीदी कानपुर में बहुत रह लिए, पहुँच आ जाओ। मैं अपने भाइयों के हुक्म के मुताबिक आपके बीच में आया हूँ। मुख्तसर सी बात करने के लिए मुझे कहा